Dear students, today we shall classify sectors on the basis of ownership. Ownership means who is the master of the sectors, who control the sector, and on the basis of ownership, there are two type of resources. This means for owner. On the basis of ownership, who is the master? We have two types of resources: public sector, two types of sectors, public sector and private sector. Two types of sectors: public sector and private sector. Public sectors are those sectors which are completely controlled by, owned by government, are called public sector. For example, railway, post office, government banks, they are totally under the control of state, central government or government. The government controlled enterprises, government controlled means of production are called public sector, and those sectors which are controlled by individual or group of individuals are called private sector. For example, Tata and Tisco, Reliance, these means of production are owned by group of individuals. The private, it is under private sector because it is controlled by individuals and group of individuals control. There is no any control of the government. In the benefit, the profit go to the individual. These are first and very important difference between public sector and private sector. Public sector are those sectors which are owned by the government. Private are those sectors which are owned by individual or the group of individual. Second, let us, for more clear concept, let us discuss next another difference. First is that the major motive of public sector is welfare. पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर करता है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, लोगों को फायदा करने का काम करता है. इसमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन मेजर फर्स्ट में क्या है? मेजर इसका मोटिव क्या है? वेलफेयर. और प्राइवेट का क्या है? मेजर मोटिव क्या है? इनकम. प्राइवेट सेक्टर है, इनकम होगा तो इंडस्ट्री चलाएगा, इनकम नहीं होगा तो इंडस्ट्री बंद, क्योंकि इनकम के लिए इंडस्ट्री का स्थापना किया, सेटअप किया गया है. So this is second important difference between public sector and private sector. Public sector, main motive of public sector is welfare, and major motive of private sector is benefit. If there is no benefit, they completely stop the means of production. But public sector, even sometimes they run, even they bear the loss, even after the loss, they run the production because they think that the production, the industry is giving job to the many other people. जॉब देने का काम करता है, कई लोग जॉब लेता है, प्रोडक्शन हो रहा है, directly or indirectly many people are connected with the companies. So this is another important motive. This is another important difference between public sector and private sector. जितने हमारे important means of production है, services हैं, they are under public sector. Like say रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, मीन्स है. तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट मीन्स और प्रोडक्शन और सर्विसेज आर अंडर पब्लिक सेक्टर. दो कॉज है, इसके पीछे दो कॉज है क्यों पब्लिक सेक्टर में है, क्यों गवर्नमेंट ओन्ड है. पहला क्या है कि दे प्रोवाइड बेसिक सर्विस, इसेंशियल सर्विस. अगर दे देंगे प्राइवेट को तो उसका फ़ायदा उठाएगा और कई गुना चार्ज कर. जैसे मान लीजिए वाटर सप्लाई, पीने का वाटर का सप्लाई अगर दे देंगे प्राइवेट को, वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है, पीने जरूरी है, वो कई गुना पानी का कीमत बढ़ा देगा, लोग को देना पड़ेगा, पिएगा नहीं, बिना पानी का रह नहीं सकता है. बोलिविया नामक एक कंट्री था, यही हुआ. इन बोलिविया द मैक्सिमाइज 5 times मोर वाटर टैक्सेस. तो ये सब वाटर सप्लाई. रेलवे आपको जाना है, टिकट दिल्ली जाना है, ट्रेन से ही जाएंगे, बस से तो आप प्रेफर करेंगे नहीं, मनमाना टिकट. लेकिन रेलवे कई बार टिकट का दाम कम करता है क्योंकि इसका मेजर मोटिव क्या है? वेलफेयर. सो दिस इमरजेंसी और बेसिक सर्विसेज आर अंडर कंट्रोल बाय प्राइवेट पब्लिक सेक्टर. सेकेंड इज दैट ह्यूज इन्वेस्टमेंट. अब रेलवे में कई अरबों खरबों का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है. प्राइवेट सेक्टर इतने अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई ऑल्सो दे आर अंडर
पब्लिक सेक्टर में रहते हैं। अब कई बार तो ऐसा भी होता है समटाइम दैट पब्लिक सेक्टर हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन। जैसे पंजाब में केस आया, इन पंजाब मैंने जो कॉटन इंडस्ट्री थे, दे वेर एट द वर्ज ऑफ स्टॉपिंग द प्रोडक्शन बंद करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका शिकायत है कि इनकम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कहा कि नहीं, प्रोडक्शन बंद मत कीजिए, क्योंकि इफ यू आर रनिंग योर कंपनी, मेनी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फार्मर्स हु आर ग्रोइंग कॉटन आर गेटिंग indirect employment in the factory. That's why the government tried to assist them, the government tried to help them by giving them electricity free of cost, electricity देने का प्रयास करता है, और टैक्स में रिलैक्सेशन करके वो इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को, so that they can continue their production and give employment to the people. तो ऐसे और भी कई जो है बेसिक चीज़ है, गवर्नमेंट स्वयं चलाने का काम करता है, देखता है कैसे लोग अन्न देना, फ्री में अन्न दिया जाता है ताकि लोगों को फूड मिले। अभी जो जैसे है, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, पीपल आर गिवन एक्स्ट्रा फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर गिवन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए ताकि लोगों को इम्यूनिटी मिले, भोजन ले, लोग जिंदा रहे। तो गवर्नमेंट कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी बेनिफिट का मुफ्त में, कई बार सैनिटेशन हो गया, स्कूलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता है। इवन देयर इज जीरो इनकम और नो इनकम, जीरो इनकम पर भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है, अपना इन्वेस्ट करता है, सो दैट पीपुल मे गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ दोज फैसिलिटीज, देयर मे मस्ट बी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस फॉर, सो द गवर्नमेंट सेक्टर इवन does services and production without any profit, even invest, there is huge invest by the government, because the major profit is पब्लिक वेलफेयर। इसका मेजर क्या है? पब्लिक के लिए वेलफेयर करें, पब्लिक के लिए फैसिलिटी लाएं, गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा स्कूल खोलना, गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज चलाना, रोड बनाना, गवर्नमेंट के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम, नाला वगैरह की व्यवस्था करना, रोड वगैरह बनाने की व्यवस्था करना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना। इसमें कहाँ पैसा गवर्नमेंट अपने पास इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इसका मेजर मोटिव यही है कि पब्लिक का वेलफेयर करना।